Hello, folks. Hello. So today we are going live with Swikar Parents Group. So everyone knows about it. They are parents group of India, which help parents to understand about. Thank you, Eddie. Thank you very much. Okay, so we will take board on Swikar Group. Ma'am, I'm sending you the request, please. Hi. I'm good. How are you? I'm also good, ma'am. Thank you for ma'am coming us live. It's an honor to us to have you on the board. Thank you. It's your birthday today. Yes, I'm ma'am. reading it. Happy Yeah, birthday. yeah. Thank you, ma'am. Ma'am, so we will start our live with your introduction, little bit of your introduction. Okay. So you want me to tell? Yeah, yeah, ma'am. Okay. My name is Aruna Desai. I'm co-founder of Svikar the Rainbow Parents. We few like 10 parents started this group, and my son is gay, and because of him, I'm here today. Okay. So Thank you, ma'am. he came out to me in 2007, and Mhm. तो 13 साल से तो ही केम आउट एंड ही गॉट द एक्सेप्टेंस इमीडिएटली. उसके बाद से तो मैं कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ. It's a great thing, ma'am, to have you like you parents. You are the power of us. I can say that we feel मतलब हमें ताकत मिलती है आप लोगों को देख के और प्रेरणा मिलती है कि और भी मीन्स हम आगे आ सके अपने आप को एक्सेप्ट कर सके जब आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने आप को तो हम लोग क्यों ना कर सके. थैंक यू वेरी मच मैम फॉर कमिंग. सो आई विल लिटिल बिट थैंक यू एवरीवन फॉर योर विशेस. Okay, so we will start, ma'am. What is the aim of Swikar Parents Group? ओके. उसके पहले मैं थोड़ा सा लाइक हाउ इट स्टार्टेड द ग्रुप ना, हाँ, दैट आई how वांट it टू is. टेल. या. Hmm. ओके. सो जब लाइक जैसे अभिषेक ने जब बताया तो मैं हम लोग बहुत सारे बाकी बच्चों को मिलते थे. सो वी केम टू नो दैट लाइक कि देयर इज acceptance is not there, from parents. So it was important, to bring together parents of LGBTQIA plus children to form the support group, so that they can advise, like we accepting parents, already those who are accepting parents can advise and guide each other, keep each other updated about the latest news and developments, and most importantly for out parents to be able to offer peer counseling and help other parents who are struggling to accept their LGBTQIA plus children. And Hmm. so the vision of Swikar, the Rainbow Parent, is to be pan India and parents of Indian origin residing in other nations. Multicultural network of parents of LGBTQIA plus children who can stand with each other and challenge existing notions of gender and sexuality, and fight for their own rights. Hmm. There were conversation between four of us. Four parents were already, on our individual capacity. We were counseling, like you can say counseling or sensitizing other parents. So we were already doing this, and we were in conversation of having like some kind of group, because we were doing separately. So we Hmm. already had discussion, and then there was a Sridhar Rangayan's film in Evening Shadows initiated this process of having a formal group. So Evening Shadows was a crowdsourced film, and the amount from
that crowdsource, Sridhar Rangan kept some amount, for having a meeting for a parents group. Hmm. Uh, so then that is how, like, we had with that time we started with 10 parents, and now we have more than 100 parents. We have completed 4 years. We started in 2007. And so the most importantly, support group like this, the strengthen the bond between parents and children. सो दैट Yeah, इज true. इम्पोर्टेंट, बिकॉज देर जैसे बहुत सारे ग्रुप है अपने इंडिया में, पर पेरेंट Hmm. सपोर्ट ग्रुप नहीं है, मतलब क्योंकि Hmm. बहुत बार बच्चे जब पेरेंट्स को बताते हैं उनके सेक्सुअलिटी के बारे में या जेंडर आइडेंटिटी के बारे में, तब पेरेंट्स को तो बहुत बार पता ही नहीं होता है। जैसे कि मुझे भी Hmm. पता नहीं था, जब अभिषेक ने मुझे बताया था तो मुझे भी पता नहीं था। तो मैंने उससे सीखना चाहा, मेरा एक्सेप्टेंस तो इमीडिएटली था, और मैंने उससे ही सीखा कि ओके, व्हाट इज होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांससेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी, एंड ऑल द होल स्पेक्ट्रम। Oh, man, great. या इट्स इंस्पिरेशन कि आप लोग सीखने का चाह रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम फॉर दैट। तो मैम तो किस आपने टाइप। आपने बोला, आपने पूछा था कि एम क्या है। तो ये हाँ एम। एम ये है कि या तो एम ये है कि टू प्ले पिवोटल रोल इन बिल्डिंग इक्वल सेफ इक्वल एंड सेफ वर्ल्ड फॉर LGBTQIA चिल्ड्रन of Indian descent by strengthening acceptance in all spaces with primary focus on homes. So थैंक that यू is the मैम main aim. फॉर क्लियरिफाइंग द एम। ओके, सो मैम किस किस टाइप के हेल्प प्रोवाइड करती है स्वीकार ग्रुप? या तो हम लोग ये करते हैं कि वी क्रिएट सेफ स्पेस फॉर पेरेंट्स ऑफ LGBTQIA इंडिविजुअल्स टू डिस्कस देयर एंजाइटी, फियर एंड जॉयज। मतलब जो खुशी है वो भी हम एक दूसरे के साथ जैसे हम्म। दुख बांटते हैं, जैसे किसी के रहते हैं, लाइक we are having all the parents accepting parents, but they have small things, like it's a process, रोज कुछ ना कुछ रहता है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। देन वी फैसिलिटेट पीयर टू पीयर शेयरिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड थ्रू एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स फॉर एक्यूरेट scientific information. We had like workshops, for parents about queer identities and laws, myths, religion, health, rights, and the progress of movement from an intersectional lanes, so and then we create जैसे हम लोग हमारी एक दूसरे की कमिंग आउट स्टोरी जो शेयर करते हैं हम, वो हम स्टोर करते हैं, जो जो दूसरे पेरेंट्स को हेल्प करती है, हेल्प। टू एम्पावर अदर पेरेंट्स। दैट इज मैम दिस वे वी कमिंग आउट हेल्प। स्टोरी कॉन्फिडेंस भी थोड़ा मिलता है लोगों को कि दे कैन आल्सो डू इट। या यस, सो यस। मैम जब 377 था तो आपको कौन कौन से ऐसे मीन्स डिस्क्रिमिनेशन या वैसा कुछ सोशल स्टिग्मा था 377 के टाइम? मतलब आप लोगों को अगर क्या आप प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था उस टाइम? अगर आप पर्सनली मुझे पूछो तो मुझे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना तब हुआ ना अब हो रहा है। उसका डिस्क्रिमिनेशन का ऐसा है ना कि लाइक देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, it's important कि how parents tell society, about their own children. Like when Abhishek came out to me, actually he never came out. It was me who asked him. Okay, so I am there with him, like rock solid support is there. So society will listen to me what I want to say. Society will not will not what they are not going to ask me anything. I am going to tell them what I am feeling for my child and what it is, so that is very important. ओके एंड जैसे आपने बोला कि बिफोर सेक्शन 377 के पहले तो इंडियन पेरेंट्स हैड, वो एक स्टेपल रिप्लाई उनका रहता था कि लाइक प्री प्लान लाइक रिस्पॉन्स टूवर्ड्स, अगर बच्चे अगर दे आर कमिंग आउट, so that is always like, I don't want to talk
उनके रिप्लाई ऐसे रहते थे ज्यादा करके रिस्पॉन्सेस, हाँ, आई डोंट वांट टू हम्म टॉक अबाउट इलीगल थिंग्स, बिकॉज सेक्शन 377 था, तो उनको वो जैसे एक पॉइंट मिल जाता था कि ओके दिस इज इलीगल, सो वी डोंट वांट टू स्पीक अबाउट इट, ओके। एंड हम्म और फिर जैसे प्लीज डोंट ब्रिंग ऑल दिस वेस्टर्न कल्चर एट होम, हम्म ऐसा उनका हम्म, रहता था कि जब देखो उनको ये वेस्टर्न कल्चर है, इंडिया में ऐसा नहीं है, ऐसा ही उनका। हाँ एंड जैसे दिस हैपन्स ओनली इन मूवीज, है ना, हम्म मूवीज में हम्म होता है, ये ऐसा रियल हम्म लाइफ में नहीं रहता है। एंड हम्म क्या दिस इज ऑल, जैसे पेरेंट बोलते कि दिस इज ऑल नॉनसेंस, इट्स नॉट इवन अ रियल थिंग, ऐसे सब चीजें थी। सेक्शन 377 था तब पेरेंट्स को ये था, फिर बाद में जब सेक्शन 377 चला गया, तो जैसे फिर मतलब बहुत सारे पेरेंट वैसे ही ना अपने आप ही उन्होंने देखा, उस वक्त हम्म जो 6 सितंबर 2018 के बाद से हम्म जो चीजें हो रही थी, तो बहुत हम्म सारे पेरेंट्स ने अपने आप ही देख लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे न्यूज देख रहे थे, तो पेरेंट्स ने देख लिया था, तो हो गया था। और फिर उसके बाद का जो उसके बाद का जो प्राइड प्राइड आ गया था, तो उसमें बच्चे अपने आप ही लाइक जो सेक्शन 377 के पहले मास्क पहनते थे, वो उसके बाद के प्राइड में मास्क पहनना उन्होंने बंद कर दिया था, यू नो। सो हम्म इट वाज लाइक हम्म दैट, एंड फॉर मेनी पेरेंट्स इट इज लाइक, this is a phase, they will always ask, is this a phase or is this a some kind of fashion or something, ये ऐसे चोरी सब चीजें रहती थी, चोरी अभी हाँ। यूज यूज करते हैं हाँ हाँ, यस यस। क्योंकि अभी भी आप क्या बोल रहे थे, 677 पहले, अभी भी बहुत सा बार हम्म मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ, तो उनको बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो थोड़े दिनों के लिए लगता है, बाद में वो भूल जाएंगे, उनकी कंपनी ऐसी रहती है, इसके लिए बोलते हैं, फिर बाद में भूल जाएंगे, इवन नाउ हम्म दे विल, व्हेन आई एम ना टॉकिंग टू देम, वो ऐसा यूज करते हैं, ऐसा हाँ हाँ अभी भी है वैसा बहुत थिंकिंग अभी भी है। बहुत कम होना बाकी है मेरे को जैसा लग रहा है क्योंकि धीरे धीरे या ही नहीं, होगा सब बहुत कुछ कम हुआ है, हाँ, नहीं बहुत कम हुआ है, पर कोई कोई जैसे जिन्होंने उस हम्म वक्त वो न्यूज नहीं देखी थी, सेक्शन 377 गया था तब क्या हुआ था, जजेस ने क्या, हम्म सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, वो उनको पता नहीं था हम्म ना, तो इसके लिए हम्म ऐसे। हम्म तो मैम आपको ऐसा मीन्स सोसाइटी में जब कमिंग आउट किए थे भैया तो आपको ऐसा कुछ फीलिंग मतलब सोसाइटी से कुछ ऐसा रिपल्सन फील हुआ था या ऐसा कुछ फैमिली मेंबर्स में या ऐसा कुछ मैंने अभी अभी बोला कि मुझे तो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आए, हाँ जैसे यही है मेरे लिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट मेरी जो इमीडिएट फैमिली है, दैट इज मी, माय हस्बैंड एंड माय चाइल्ड, these three are very important for each other, for all of us, all three of us, and हम्म that is the main family. It matters only in these three of us. उसके बाद इवन दो माई, मतलब मेरे पेरेंट्स हो, मेरी सिस्टर, मेरी सिबलिंग्स मतलब हो, या मेरे हस्बैंड के हो, यू नो फॉर देम वी आर गोइंग टू टेल देम व्हाट वी आर feeling about our child, we are not हम्म going to ask them, or we are not going to cry in front of them कि अच्छा हम्म अब हमारा बच्चा गे है तो हम क्या करें, ये करें, आई एम वी आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर देयर ओपिनियन। तो ये हम्म कभी नहीं प्रॉब्लम हुआ, मतलब प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, बिकॉज द वे आई टोल्ड एंड द वे दे आर लाइक दे, अभिषेक इज देयर मोस्ट फेवरेट चाइल्ड, सो इसके लिए तो वो प्रॉब्लम वैसे भी नहीं था। हम्म Yes, but challenges are there. Many other हम्म when I talk to other parents, I see that as a queer parent, even though they have accepted their children, but that वो थोड़ा fear अंदर रहता है, थोड़ा मतलब जैसे कि अच्छा मैम क्या क्या उनका चैलेंजेस ऐसे उनके होते हैं क्वेयर पेरेंट्स हाँ हाँ, वही नेक्स्ट उनको ये क्वेश्चन भी वही सबसे है बड़ा, हाँ, सबसे हाँ बड़ा उनको यही है कि अपने बच्चे अकेले रह जाएंगे, उनको देखेगा कौन, उनका मतलब जैसे वो अगर बीमार पड़ते हैं तो उनको कौन देखेगा, मतलब हम हमेशा वो दिमाग में ऐसा है, अगर लड़का है तो लड़की से शादी करता है तो उनका मतलब दैट हम्म दैट daughter in law, or will take care of, but they have to हम्म understand that your child can remain single and very happy,
यू नो, ट्रू। दैट हैप्पीनेस इज, हैप्पीनेस के लिए किसी किसी और की जरूरत ही है ऐसा नहीं है, यू नो। वो और वो अगर यू नो दैट पार्टनर कैन बी सेम सेक्स पार्टनर और फिर भी हैप्पीनेस, यू नो, तो ये पेरेंट्स को बिलीव करना बहुत जरूरी है कि हम्म। बच्चा हमारा कहीं पे भी खुश रह सकता है, यू नो। तो ट्रू वो मैम। एक लोनलीनेस का बहुत है उनको, मतलब हम्म। पेरेंट्स को। मैम आपके लिए एक्सेप्टेंस क्या मीनिंग रखता है आपकी लाइफ में? एक्सेप्टेंस मेरे लिए ऐसा है ना कि यू नो आप सामने वाले को without keeping any expectations, any what you call conditions, you know, you should be able to accept that person. यू हम्म। नो, मतलब अगर जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड का अगर हो कि तो आप मतलब वो प्री प्लान दिमाग में रहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस, अच्छा मेरा बच्चा बड़ा होगा तो ये करेगा वो करेगा करेगी, यू नो, ये जो भी मतलब। ड्रीम्स बहुत रहते हैं। तो वो आशा इतने रखते हैं ना, एंड देन सोसाइटल प्रेशर बहुत रहता है। जैसे बहुत बार जब बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स के मन में शायद रहेगा उनको एक्सेप्ट करना, पर वो हम्म। इमीडिएटली उनको सोसाइटी का दिमाग में हाँ आता है कि ये अभी हाँ क्या आवाज आ रही है ना? हाँ मैम 2 मिनट रुकिए, आई एम कमिंग। हाँ हाँ मैम, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ। सो उनको ये रहता है कि मतलब सोसाइटी को अब हम जवाब कैसे देंगे, हम्म। ये रहता है। इसलिए तो एक्सेप्टेंस मेरे लिए यही है कि आप हाँ। टोटली मतलब सोशली टोटल सपोर्ट टू योर दैट नेक्स्ट पर्सन, फिर वो कोई भी यस। हो, अपना खुद का बच्चा हो या कोई मतलब आई हैव सो मेनी फोस्टर चिल्ड्रन, यू नो। तो हम्म। दैट वो, एंड देन यू नो ऑल्सो एक्सेप्टेंस सबसे पहले। यस अगर मैम। आप क्यूअर बच्चे के बारे में अगर सोच रहे हैं तो सेल्फ हम्म। एक्सेप्टेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको सबसे हम्म। पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव हम्म। एक्सेप्टेड योर, तो बस फिर आप आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, and then you know you हम्म। to be able to live your life freely, and you हम्म। know stay true to yourself. That is acceptance, you know. ट्रू ट्रू। Freedom of expression, you know. हम्म। Now because you know my child, after the acceptance, he got that confidence. Abhi you know he can conquer the world, ऐसा है. So that is what is हम्म। acceptance. Yeah मैम, acceptance is really needed and it gave confidence to us too. Yeah Yeah. मैम, next question है how to come out to parents? ये सबसे बड़ा सवाल है हम्म। अभी। 1 second. ओके। मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि अगर आप कब आपको मतलब पेरेंट्स को नहीं बताना है, या ओके हम्म। वो बाद में भी हम बता सकते हैं। हम्म। यू नो यू हैव टू चूज द राइट प्लेस, यू नो। आपको कहाँ बताना है, किस तरह से बताना है, हम्म। जैसे राइट टाइम जैसे बोलते हैं, जैसे वैसे राइट टाइम कभी आता नहीं है। अ, मतलब ऐसे अगर देखने जाओ तो राइट टाइम रहता नहीं है, बट हम्म। फिर भी जैसे या आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने आपके घर के अंदर अगर आप बोलते हो तो आपको सेफ है। कभी कभी ऐसा रहता है कि घर के अंदर नहीं है, बहुत सारे बच्चे घर घर में पेरेंट्स के साथ में अकेले में सेफ नहीं है, तो वो लोग हम्म। जाके मतलब जैसे बाहर पब्लिक में बात कर सकते हैं, यू नो। सो वो you know to pick up a good time and place is really important. Okay. ट्रू जैसे मैम। जैसे for example Abhishek, he had you know decided to come out when my husband was not there. He had gone हम्म। outstation, and so he wanted to tell me at, you know, when he's not there, and हम्म। after coming from office in the evening he wanted to tell me. So the timing what I'm saying is the right place, and you know uh, जैसे अगर कोई फैमिली ओकेजन अगर चल रहा है, तो उसमें हम्म। अगर कभी आप बताओगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, नो, दैट कैन बी। हम्म।
हाँ, सो हम्म। तो यू शुड नॉट स्पॉइल दैट ओकेजन, तो इसलिए हम्म। कभी जैसे अकेले में बात करनी है तो अकेले में आप कर सकते हो ऐसे। सो हम्म। दैट, एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यू हैव टू, जैसे सबसे पहले बहुत बार मैं ये बोलती हूँ कि आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, you should wait for to be financially independent if it is पॉसिबल। पॉसिबल। बहुत हम्म। बार, हाँ, इफ इट इज पॉसिबल, बहुत बार ऐसा होता है ना कि तू वो तब तक आप रुक नहीं सकते हो, यू हम्म। आर स्टिल स्टडिंग, हम्म। पर सिचुएशन ऐसी रहती है, जैसे या तो उनको जैसे बच्चे अगर पढ़ रहे या कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल में है या कॉलेज में है, तो उनको बुलिंग इतना ज्यादा हो जाता है, एंड देयर इज हैरेसमेंट फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस, तो उनको बहुत जरूरी है बताना। तो इफ इट दैट इज आई एम सेइंग, इफ इट इज पॉसिबल तो वेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तब बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट इफ इट इज हम्म। नॉट पॉसिबल तो यू कैन कम आउट टू योर पेरेंट्स, बट बिफोर दैट इवन यू शुड, मतलब जैसे अपने, यू शुड टेल योर, गैदर द फ्रेंड्स, हम्म। कम्युनिटी फ्रेंड्स विल बी बेटर, तो एंड हम्म। यू अभी यूट्यूब, go on Facebook, Instagram, you will find community friends, many community friends, हम्म। तो वो हम्म। सबसे पहले कीजिए। एंड देन समटाइम्स सिबलिंग्स आल्सो आवाज, हेल्प। यस यस, सो वो कीजिए, मतलब क्या, मतलब कितने बार ऐसा भी होता है कि एक्सटेंडेड फैमिली में, लाइक जैसे आंटी, हम्म। मेरा एक केस में ऐसा था कि उसने अपने अंकल आंटी सबको बताया है, उसकी कजिन्स वगैरह सबको बताया, बट पेरेंट्स को नहीं बताया। एंड देन ही कॉन्टेक्टेड मी कि हाउ टू कम आउट टू पेरेंट्स, हम्म। so answer was there only. I told him that you have already come out to your uncle auntie, they are the best, they can help you, हम्म। ऐसा। So that is there, so whoever you feel comfortable, जैसे बहुत बार ये भी होता है, ग्रैंड पेरेंट्स आर मोर कंफर्टेबल देन योर ओन पेरेंट्स, तो या। आप मतलब जज कर सकते हो घर पे, मतलब अच्छा, हु इज मोर कंफर्टेबल, वो करके आप कर सकते हो कि हाँ ऐसा। एंड देन या सो सिचुएशन आपको ऐसे क्रिएट करनी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताऊंगी वो, लाइक अभी व्हाट अभिषेक हैड डन वाज, ही वांटेड टू चेक द वाटर, कि वेदर द वाटर इज कोल्ड, वार्म, और कि yeah, what is my opinion about it, so हम्म। what he had come out to all his friends, all his हम्म। like ladies friends, and all the friends, so they decided, to check with auntie. So what हम्म। Abhishek never told me, one of his friend told me that there is one boy, gay boy who is gay, and his parents हम्म। are not accepting him, हम्म। and not accepting, not giving food, and thrown out of the house, so that time I came to know, first time I heard that gay. So I asked that his friend, what is gay? So he told me that, auntie, how you like boy, you wanted to marry a boy, so like that, gay means one boy likes another boy. So my reaction was, oh, so what if he's gay, and how parents are not giving food, and especially how mother can do that, so they came to हम्म। know that okay, the water is cool, हम्म। इस तरह से हुआ था। तो ये आप कर सकते हो, कि हम्म। आपको चेक करना है कि आपके पेरेंट्स की, मतलब वेदर दे आर होमोफोबिक और नॉट, पहले उनको पता है कि नहीं है, अगर पता है हम्म। तो वो होमोफोबिक है कि नहीं, वो आप चेक कर सकते हो। और धीरे धीरे, या ये भी कर सकते हो, इफ यू आर कंफर्टेबल टॉकिंग टू देम, लाइक दिस, टू हम्म। स्टार्ट विथ टॉपिक। आप दूसरा, जैसे आप छोटे छोटे ऐसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जैसे आप टीवी पर वगैरह आते हैं, हम्म। गे फिल्म्स, हम्म। आई मीन क्यूअर फिल्म्स बहुत सारे आते हैं ना, नेटफ्लिक्स पे हम्म। आते हैं, तो आप धीरे धीरे वो देखने शुरू करो, पेरेंट्स को दिखाओ। बहुत सारे वीडियोस है, सिंपल पेरेंट्स का, आपका मतलब हम्म। चाइल्ड कमिंग आउट, पेरेंट्स एक्सेप्टिंग वीडियोस,
सो ये छोटे छोटे वीडियोस आप दिखाने शुरू करो, आर्टिकल्स शेयर करो, आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या है वो हम्म। पता करना ही उसके लिए। you know better, when you are staying with your parents, you know better which are the ways you can find out whether your parents are हम्म। homophobic or not, तो ये करके हम्म। आप शुरू कर सकते हो। एंड देन व्हेन यू ट्रू। आर एक्चुअली कमिंग आउट, कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको आपको बताना है तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपको व्हेन यू कम आउट योर पेरेंट्स, डोंट एक्सपेक्ट लाइक यू हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम, मे बी बहुत सारे साल आपको लगे हैं खुद को एक्सेप्ट करने, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी को के लिए इतने सारे साल लगे हैं। तो आप ये मत ट्रू। एक्सपेक्ट करो कि आप जब पेरेंट्स को बताते हो तो इमीडिएटली वो एक्सेप्ट करेंगे। बहुत हम्म। बार इमीडिएटली एक्सेप्ट करते ही है, बट जैसे हम्म। अभी जब अभिषेक ने जब मुझे उसके बाद 1 वीक के बाद जब मुझे बताया कि हम्म। यू नो ही उस जी। बीच ऐसा हुआ था कि हिज फ्रेंड एवरी डे ही स्टार्टेड टेलिंग मी स्टोरीज, एसएमएस भेजने लगा। उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, हम्म। 2007 की बात थी। व्हाट्सएप था हम्म। पर मेरे पास नहीं था। हम्म। तो मैसेज आ रहे थे, तो मैं पढ़ रही थी। वो मुझे पूछ रहा था कि आंटी आपको क्या लगता है ये जीन्स में मतलब जीन्स का प्रॉब्लम रहेगा क्या, ऐसा क्यों है? तो फॉर मी वाज ये था कि पहले तो मुझे ही पता नहीं था, तो आई स्टार्टेड हम्म। रीडिंग, आई मीन ऑन इंटरनेट, तो हम्म। ऐसा सब शुरू था। तो मैंने अभिषेक को बताया कि योर फ्रेंड इज टेलिंग मी दैट समवन एल्स इज गे, but he is only gay and he's telling me that somebody else is gay. तो अभिषेक was हम्म। like हाँ so, he asked me कि हाँ so, तो हम्म। उस वक्त ये हुआ था कि अभिषेक को ये लगा था कि माय मॉम इज सो ब्रिलियंट कि उसको हम्म। ये भी पता चल गया है कि ये मतलब तीसरा कोई नहीं, ये इसका फ्रेंड ही गे है, तो अभिषेक के बारे में मुझे पता चल जाएगा, तो हम्म। इसलिए जब जब उसने मुझे एक्चुअली बताना शुरू किया किया हम्म। ओके। हम्म। तो वो तो ही कुडंट कम आउट, वो बार बार ये बोल रहा था कि मम्मा आपको ऑलरेडी पता है, आप बताओ। तो आई वाज हम्म। लाइक कि क्या पता है, मतलब हम लोग इतने, हमारा बॉन्डिंग इतना अच्छा है, इतने क्लोज है, वी आर लाइक नॉट मदर एंड सन, वी आर लाइक फ्रेंड्स। तो वो हम्म। क्यों नहीं बता पा रहे? तो वो बार बार बोल रहा है कि आपको पता है, यू टेल। एंड देन वो डर रहा था, तो उसको ये था कि मम्मा को पता है फिर भी ये बोल क्यों नहीं रहे, उसके दिमाग में ये था कि ऑलरेडी ये टॉपिक शुरू हो गया है तो शायद मुझे पता चल जाएगा। बट देन हम्म। मुझे सच में ये नहीं पता था कि वो उस बारे में बात कर रहा है। मुझे ये लगा हम्म। था कि अच्छा वो उसके पार्टनर कोई, मतलब जैसे आ, उसको किसी से हम्म। प्यार हुआ है या हम्म। उसको कुछ चाहिए, इसलिए, क्योंकि वो तो जस्ट 17 साल का था। तो मैंने हम्म। तो ये कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कुछ क्या बात कर सकता है ना। तो हम्म। फिर बाद में मुझे वो इतना डर रहा है तो मुझे लगा कि कुछ क्या है। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मे बी ही अभी अभी जो ये बातें हो रही थी, है ना, तो शायद शायद इसी के बारे में होगा क्या। तो देन आई आस्क्ड हिम कि जस्ट लाइक दैट आई आस्क्ड हिम कि योर फ्रेंड सेड ही इज गे, सो आर यू आल्सो गे, ऐसे ही हम्म। पूछा उसको। तो उसने आ गया उठ के और आके मुझे हक किया एंड मुझे पूछने लगा कि मम्मा डू यू स्टिल लव मी, डू यू हेट मी नाउ? तो मैंने बोला अच्छा यू वांटेड टू से दिस, ओ गॉड यू शुड हैव जस्ट सेड ना लेट्स गो फॉर डिनर। हम लोग होटल गए, खाना खाया और अच्छे से हम लोग मस्त टाइम स्पेंड किया। उसका एक फ्रेंड हम्म। साथ में लेके हम लोग 3 जन गए थे। एंड उसके बाद अभिषेक मुझे बार बार पूछ रहा था कि मम्मा यू हैव एनी क्वेश्चन, पूछो मुझे, आपको जो भी अगर कुछ सवाल है तो ये है। आपको आपको मतलब आपके पेरेंट्स के साथ पेशेंट रहना बहुत जरूरी है। हम्म। मुझे मेरे मेरे लिए कोई सवाल नहीं थे, मेरे लिए मैंने एक उसको पूछा था, कि यू आर श्योर अबाउट दिस, मीन ऐसा नहीं होगा ना कि टुडे यू आर टेलिंग मी दिस एंड टुमारो यू मे से दैट यू लाइक अ गर्ल। तो ये एक सवाल किया था उसको, तो उसने मुझे उसका जवाब ये दिया था, विच विच यू कैन नोट डाउन द पॉइंट
what Okay. he had said that कि mama you I mean is it possible for you to change? You are heterosexual. Is it Hmm. possible for you to change and become a homosexual? कितना अच्छा सवाल का क्या जवाब दिया उसने, जो मुझे Hmm. लाइफ टाइम मेरे दिमाग में बैठ गया कि यस, कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट सेक्सुअलिटी इज नॉट पॉसिबल टू चेंज सो Hmm. बस तो ये एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है तो Hmm. Hmm. एंड बच्चों के लिए यही है कि आप जब आप आपके पेरेंट्स को बताते हो तो ये भी सोचो कि शायद उनको इमीडिएटली एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। तो एंड मतलब यू हैव टू बी पेशेंट एंड एंड सबसे लास्ट में ये बताऊंगी कि अगर आपके पेरेंट्स को हार्ड टाइम आ रहा है मतलब एक्सेप्ट करने के लिए, तो वी आर देयर स्वीकार Hmm. पेरेंट्स आर देयर, एनकरेज देम टू ज्वाइन स्वीकार। ओके True. एंड आप वो स्वीकार ज्वाइन करेंगे तो इमीडिएटली एक्सेप्टेंस में हो जाएगा उनका, एंड दे विल बी Hmm. कंफर्टेबल विद देयर चाइल्ड सेक्सुअलिटी। Thank you, ma'am, for your support. Immense support. It means a lot. एंड थैंक यू। आपकी जो भी स्टोरी है बहुत ज्यादा इमोशनल है, मीन्स इट कनेक्ट्स अस, मीन्स बहुत डीपली कनेक्ट करती है कि कोई भी पेरेंट्स जब एक्सेप्टेंस की बात करता है इट्स मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई भी ऑर्थोडॉक्स फैमिली होंगे या फिर होमोफोबिक फैमिली होंगे तो वहां कैसे कम आउट किया जा सकता है? अच्छा। वहां पर तो आपको, जैसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था वो तो आपको चेक करना बहुत जरूरी है। हम्म। आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। यू हैव टू प्री प्लान व्हाट यू आर गोइंग टू से, यू नो कि मतलब जैसे इट कैन बी हाई रिस्क एंड क्रिटिकल कन्वर्सेशन हो सकता है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट योर पेरेंट्स आर होमोफोबिक या तो आपकी हम्म। फैमिली तो मतलब इसलिए डोंट गो लाइक अनप्रिपेयर्ड, यू कैन जैसे आप एक्चुअली क्वेश्चन पॉइंट्स पॉइंट्स लिख के लेके जॉट डाउन करके आप प्लान कर सकते हो, हम्म। एंड हम्म। एंड पहले क्या बताना है, बाद में क्या बताना है, पॉइंट वाइज यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग। हाँ, हम्म। एंड you can also do that, practice your conversation in front of mirror, you know हम्म। as if you are matlab practice. I have told this to many children, that is I am telling you, okay? So ओके। and that has worked actually, तो आप हम्म। मिरर के सामने सामने बैठ के आप जो भी पॉइंट्स आपने निकाले हैं वो आप प्रैक्टिकली यू कैन प्रैक्टिस दैट, हम्म। एंड हम्म। जोर जोर से। आप अकेले हो हम्म। घर में, जब कोई नहीं है, हम्म। तो आप मिरर के सामने बैठ के जोर जोर से पॉइंट्स को आप जोर से बोल सकते हो आपके साथ में, मतलब आप खुद के साथ, एंड हम्म। तो वो जो पावर अपने में आपके आप में अपने आप आ जाती है कि आपको, मतलब जब आप डरे रहते हैं ना, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी when I want to tell you that अभिषेक एंड मेरा रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होते हुए भी वो इतना डर रहा था मुझे बताने के लिए, एंड हम्म। आई वॉज टेलिंग हिम अभी वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, वो मुझे बार बार बोल रहा था कि मम्मा यू विल स्टार्ट हेटिंग मी इफ आई टेल यू समथिंग, यू विल स्टार्ट हेटिंग हम्म। मी। तो मैंने उसको ये भी बोला था, देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड और देर इज नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन मेक मी हेट यू। आप कुछ भी बताओ, मैं मतलब तुमको कभी भी हेट नहीं करूंगी, तो इतना उसको बोलने के बावजूद भी वो डर रहा था, तो इसलिए इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड ऐसा कर करके वो प्रैक्टिस करके आप स्ट्रांग, मतलब यू कैन बी और आपको एक्चुअल कन्वर्सेशन बात करते करते अपने आप से खुद से बात करते करते आपका कन्वर्सेशन कंफर्मेशन मिल जाता है, एंड you have to focus on feelings over identities. हम्म। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको आपकी फीलिंग्स का आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब पेरेंट्स से हम्म। बात करने वाले हैं तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी फीलिंग्स के बारे में आपको बताना है। तो इसलिए आप बिकॉज ट्राइंग टू एक्सप्रेस लेवल, कि आप ये हो वो हो, उससे अच्छा आपको क्या फीलिंग है वो बताना ज्यादा
ज्यादा अच्छा रहेगा, इफ यू आर नॉट हम्म कंफर्टेबल टू, अगर आप राइट वर्ड्स नहीं डाल सकते हो, तो आप आप किसी कोई क्वेयर आइडेंटिटीज है जो फेमस है, उनके बारे में आप उनके बारे में बात कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट हम्म विद दैट। जैसे कितने सारे फेमस, लाइक मे बी एक्टर्स हो और फेमस हम्म पर्सनालिटीज हो, उनके बारे में बोल के आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हो, हम्म तो पेरेंट्स को वो ज्यादा, इट्स नॉट दैट कि हम्म अच्छा ये अपना ही अकेला बच्चा नहीं है। आप हम्म उस वक्त जब बता रहे हैं तो आप बाकी फ्रेंड्स के बारे में तो नहीं बता सकते हो ना, तो आप हम्म फेमस पर्सनालिटीज के बारे में बोल सकते हो उनको, एंड हम्म आपको अगर आपके पेरेंट्स ज्यादा होमोफोबिक लगते हैं, तो आपको आप जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा कर सकते हो, घर में जो भी एडल्ट रहेंगे, जैसे हम्म आपके जैसे ग्रैंडफादर्स रहेंगे, ग्रैंड मदर होंगे, या अंकल आंटी, कभी कभी ज्यादा सपोर्टिव वो होते हैं, हम्म या फिर दोनों में से, जैसे पेरेंट्स में फादर या मदर में जो ज्यादा सपोर्टिंग सपोर्टिव रहेंगे, तो वो आप हम्म उनको उनको भी बता सकते हैं, मतलब आप उनके थ्रू जा सकते हो, तो हम्म आ, तो वो चेक कीजिए आप किससे किसके, या फिर जैसे जैसे अभिषेक ने किया था, कि ट्रस्टेड फ्रेंड्स, कि हम्म थ्रू फ्रेंड्स ऑल्सो यू कैन, कि चेक, हम्म कि ये आप मतलब पेरेंट्स की किस तरह कि से करना चाहिए, किसको हाँ हाँ। हाँ एंड ऑल्सो ये भी आप मुझे बताना है कि बहुत बार ऐसा होता है पेरेंट्स होमोफोबिक होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू, बिकॉज प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है। मैं जब पैनल पे हूँ, तब उस वक्त ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा बोला है कि कि मैम आप ऐसा बोल रहे हो, पर हमारे पेरेंट्स तो इतने ज्यादा होमोफोबिक है कि वो तो मतलब जैसे हर हर वक्त टॉन्ट मारते रहते हैं, और फिर बार बार बोलते रहते हैं। मतलब देयर वाज वन लेस्बियन गर्ल एंड शी वाज हम्म सेइंग दैट, एंड शी वाज लाइक, पेरेंट्स बोल रहे कि हाँ, बी लाइक अ गर्ल, लड़कों के जैसे कपड़े पहनती है, ये वो, बार बार ऐसा बोलते हम्म रहते हैं। सो आई वाज लाइक, कि व्हेन शी वाज सेइंग कि यू आर सो कंफर्टेबली सेइंग दैट ये है, बट हमारे पेरेंट्स ऐसे, तो आई टोल्ड हर दैट, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमारे पेरेंट्स होमोफोबिक है, आप जब उनको बताओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू टेक आई मीन टेक टेक छोटा रिस्क रिस्क तो लेना पड़ेगा। एंड हम्म जैसे मैंने बोला था, वो टाइम वगैरह आप प्लेस स्पेस का पर वो डिसाइड करके आप, है ना, हम्म वो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। एंड हम्म ऐसा हुआ, वही लड़की के बारे में बात करें, उसने जब व्हेन she came out to mother, and they were okay, but they had questions, they were so हम्म highly homophobic, but बाद में जब मुझसे बात की, immediately next day, I mean she approached me and spoke to her mother, and they were very comfortable. So कभी कभी हमको सच में डर लगता है कि पेरेंट्स आर होमोफोबिक, ऐसा लगता है, बट देन कभी कभी नहीं रहता है। दिस इज आई एम हम्म ओनली सेइंग, कभी कभी बहुत बार पेरेंट्स होमोफोबिक रहते हैं, एंड दे आर एक्चुअली रहते हैं, तो हम्म आ, तो वो है कि मतलब कभी पेरेंट्स में कोई कभी मदर्स आर बेटर ऑप्शन टू टेल, कभी कभी हम्म फादर्स आर बेटर ऑप्शन टू टेल, एंड सबसे हम्म इम्पोर्टेंट तो हमारा इमरजेंसी प्लान तो होना जरूरी है, हम्म यू नो जब होमोपैथिक पेरेंट्स को आप बता रहे हैं, तो आपको वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको बैकअप प्लान जैसे रहना, कि जैसे आपको बाकी फ्रेंड्स, मतलब आपको अगर घर से निकाला, क्रिटिकल कन्वर्सेशन अगर हुआ, एंड पेरेंट्स थ्रो यू आउट ऑफ द हाउस, देन यू हैव टू हैव लाइक समबडी, एटलीस्ट कि जो आपको जैसे लाइक कैन स्टे कैन करने के लिए अकोमोडेट यू, हाँ हाँ अकोमोडेट कर सकते हैं आपको ऐसे। तो ये बैकअप प्लान ये है, देन दैट इज व्हाई इफ पॉसिबल, आप फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट हो, तो उसके बाद अगर पेरेंट्स ने नहीं भी एक्सेप्ट किया, तो यू कैन लाइक मैनेज योर ओन, जब तक आपके पेरेंट्स बाद में इवेंचुअली कर भी लेंगे, बट देन तब हम्म तक आपको बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है, सो हम्म एंड एंड ऑल्सो आप जब होमोफोबिक पेरेंट्स है, एंड यू हैव टोल्ड देम, एंड वो लोग हम्म ने अगर रिएक्ट भी किया, तो लेट देम रिएक्ट, यू डोंट रिएक्ट। हम्म क्या होता है
कि पेरेंट्स ने रिएक्ट किया तो आप भी रिएक्ट करते हो ना. आई नो इट इज व्हेन आई एम सेइंग दिस, सम चिल्ड्रन विल से दैट माय आवर पेरेंट्स आर वेरी बैड, दे माइट से हम्म. दैट, दे माइट थिंक दैट. बट आई नो दैट इट इज डिफिकल्ट, बट अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो आप भी गुस्सा करते हो, तो वो झगड़े वहां से ही शुरू हो जाते हैं. सो सिचुएशन ट्राई थोड़ा टू बिगड़ बी, जाते हैं. ज्यादा हम्म. बिगड़ जाते हैं. इसलिए ट्राई टू बी, काम. आप रिएक्ट इमीडिएटली मत करो, उनको करने हम्म. दो. व्हाई दे आर होमोफोबिक, को कौन रहता है, पेरेंट्स तो है, ओके, बट होमोफोबिक फोबिया क्यों आता है? या तो उसके बारे में एजुकेशन नहीं रहता प्रॉपर उसके बारे में. बरोबर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, दैट इज व्हाई दे आर हम्म. होमोफोबिक ना. यू नो हम्म. और जो कम्युनिटी चिल्ड्रन भी होमोफोबिक रहते हैं, बिकॉज दे आर हम्म. स्केर्ड ऑफ कमिंग आउट. हम्म. होमोफोबिया सिर्फ पेरेंट्स में नहीं होता है ना. तो चिल्ड्रन भी. इसलिए हाँ, चिल्ड्रन में भी होता है. तो इसलिए तो हम लोग, हमको ये मतलब, अगर इफ यू आर कमिंग आउट टू योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग, they are saying something which is like phobic words or something, that is because हम्म. they do not have knowledge. So try to हम्म. understand their situation, don't react, and हम्म. educate them, slowly. You can say हम्म. that, okay, we will speak tomorrow. हम्म. They are reacting that time, so we can say हम्म. that we will speak later on, हम्म. उसी वक्त सब बातें होने जरूरी नहीं है. एंड डोंट हम्म. एक्सपेक्ट कि अच्छा, एक ही वक्त में सब हो जाएगा. यू नो अगर हुआ तो अच्छा है, बहुत बार होता ही है. बहुत बार पेरेंट्स इतने अच्छे रहते हैं, दे आर लाइक, फॉर देम, यू आर माई चाइल्ड. हमारे ग्रुप में इतने अच्छे पेरेंट्स हैं कि यू आर माई आवर चाइल्ड, बस दैट इज व्हाट मैटर्स. यू नो तो वो भले हम्म. उनको उस बारे में पता है, वो स्लोली स्लोली सीखते हैं, बट तो हम्म. इसलिए वो है. हम्म. थैंक यू मैम फॉर सच नॉलेज और इतने सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. हम देख लेते हैं कुछ यदि क्वेश्चंस होंगे तो, यदि कुछ किसी को कुछ या क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो किसी को पूछना है तो कुछ आप पूछ सकते हैं. और फाइव और और मिनट्स लास्ट में ये भी बताऊंगी कि मतलब इफ यू आर इन डेंजर, तो आप हेल्प भी सीख कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे ग्रुप है, हमारा तो ग्रुप हम्म. है ही. पेरेंट्स को आप पेरेंट्स को बोलो हमसे बात करने के लिए. और फिर हम हम्म. सफर ट्रस्ट वगैरह, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है. हेल्पलाइन नंबर्स सारथी हैं. हाँ. ट्रस्ट, सारथी हम्म. ट्रस्ट है नागपुर में. तो हम्म. उनके थ्रू, लाइक जैसे अगर आप डेंजर में हो, तो उनकी हेल्प लेके, टू सेटल डाउन पेरेंट्स, धीरे धीरे, टू काम डाउन, वो भी कर सकते हो. हम्म. एंड ओके. सबसे और ऊपर से, यू कैन एडवाइज पेरेंट्स फॉर काउंसलिंग, ओके. बिकॉज या हाँ. या सो मैम, आप कोई मीन्स एक्स्ट्रा कोई मैसेज देना चाहेंगे जो देख रहे हैं, चिल्ड्रंस कम्युनिटी से जो देख रहे हैं, उनको कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? या मुझे वही है कि कि पेरेंट्स के मतलब वही कि इमीडिएटली रिएक्ट मत करो. पेरेंट्स हम्म. को को एक्सेप्ट करना होता है, बट उनको उनके लिए मतलब इतना सारा दिमाग में रहता है, कि अच्छा, दे वांट टू, व्हेन चिल्ड्रन कम आउट, पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहला सोसाइटी का आता है कि अच्छा, मैं इनको क्या जवाब दूं, उनको क्या जवाब दूं. अगर आपने सिर्फ अपनी मदर को अगर पहले बताया है, तो उनको ये रहता है कि अच्छा, मैं मतलब हस्बैंड को क्या बोलूं, सो इतने सारी चीजें रहते हैं. तो ट्राई टू बी पेशेंट एंड एजुकेट योर पेरेंट्स, एंड यस, दैट इज व्हाट आई वांट टू से. मैम, एक क्वेश्चन आया है कि हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स दैट इट इज नॉट अ डिजीज. या अभी उनको WHO ने, देयर इज अ लेटर, आई हम्म. थिंक, या it's there on Instagram also, and I can share with you also, कि ओके मैम. WHO has said it कि it is not a disease. इंडियन So इंडियन की तरफ से भी. World Health Organization. हाँ, हाँ. और इंडियन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन की तरफ से भी एक लेटर आया है कि इट इज नॉट ए डिजीज. वो भी डिजीज से हटा चुके हैं, इंडियन में भी और WHO में भी. हाँ. या. Exactly. सो thank you ma'am for coming live with us and sharing your experiences and giving us tips. It means a lot.
तो थैंक यू फॉर, या हाँ, इंडियन साइकियाट्री एसोसिएशन से आया था, हाँ। Yeah, सो yeah. मैम और एक अभी क्वेश्चन आया, पता नहीं, बैकअप प्लान, हाउ टू फाइंड अ प्लेस ट्रस्टेड ऑन। मैम क्वेश्चन दिखा आपको, ऊपर में आया है। क्या बैकअप प्लान, हाउ टू फाइंड अ प्लेस, a trusted one, and to rely on whom if we don't have anyone. या सो रिलाई ऑन, वही है, अगर आपके रिलेटिव्स में अगर कोई नहीं है तो यू कैन, मैंने जैसे बोला ना कि यू कैन हैव हम सफर कम्युनिटी ट्रस्ट या फ्रेंड्स, कोई। और हम सफर ट्रस्ट, सारथी ट्रस्ट, ऐसे ट्रस्ट है जिनके थ्रू आप पहले उनसे मतलब उनको बताइए कि आप यू आर गोइंग टू कम आउट टू योर पेरेंट्स एंड हम्म, वी नीड हेल्प, कि हम्म, अगर मतलब पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो क्या हम्म, क्या कर सकते हैं, हम्म, they can tell them, and we are already there. There are so many children, before coming out to their parent, they are taking our help, means where they are हम्म, actually seeking help, ki we are coming out to parent. So if at all हम्म, there is a problem, are you there, are you going to be there or not, so we are हम्म, there, we will always, we are there always, to speak to parents. That is हम्म, what this group is for. yeah. So okay, we shut down the live, and thank you for ma'am coming for live. It means a lot. Thank you.